Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. I'm Mrs. Asma Firdos, the host for today's session on how to choose a career. Respected attendees, before handing over the session to the speaker, I would like to present a brief introduction of AMP. What is AMP? Its vision, its mission, its flagship projects, etc. AMP stands for the Association of Muslim Professionals. AMP is non-profit organization and is registered in India, USA, UK, and Australia. It has completed 14 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP's vision is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and the nation as a whole. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. Yes. Here is the slide showing the AMP flagship projects, which includes the Employment Assistance Cell, the Employability Training Program, and the AMP Zakat Fund. The next slide. The AMP flagship projects, it also includes the National Talent Search Examination that is conducted for the students of the high school and the graduates and the +2 students. And we also have an app that is the Champion app that is in particular to the AMPians. And we have the indiamentors.com and the AMP web talks and the webinars and the internship program also. We have the school development program as one of AMP's flagship projects. The higher education scholarship guidance, the international education guidance, and the education excellence awards, the social excellence awards given to the NGOs are also important flagship projects under AMP, the Association of Muslim Professionals. Is coming to the achievements of AMP. The Employment Assistance Cell, under this cell, AMP has conducted around 350 plus job fairs and job drives, and this has enabled around 30,000 plus candidates to become employed. Under the AMPpowerjobs.com, around 61,000 plus candidates have registered for jobs,
and around 400 plus candidates have been selected, with 200 plus corporates that have been registered under the amparjobs.com. Coming to the National Talent Search examination, as I told you, this examination is conducted exclusively by AMP under 3 slabs, that is for the high school students, then +2, and for the graduates. Under this National Talent Search examination, around 1,16,000 students have registered, and many students, they received prizes also as they attended this National Talent Search examination. Now is the time to start your preparation. This examination is going to be conducted in the month of November. We have an exclusive app, the Champion mobile app, in which 56,000 students have registered, and they have been taking advantage and benefited by various career counseling sessions, the scholarship guidance sessions, and also the employment training sessions. The indiamentors.com, it has 266 plus senior industry professionals who have registered as mentors under this portal. The next slide. The achievements of AMP, it also includes Excellence in Education Awards that has actually honored 400 plus influential educators, and also the Social Excellence Awards given to the NGOs, and also Higher Education Scholarship Guidance is one of AMP's achievement. And the AMP Zakat Fund, under this portal, around 10,000 plus students and professionals have been benefited. The School Development Program, it's one of the major flagship project of AMP, and under this program, around 2.81 lakh students have been benefited through the school development lectures, also known as the skill development lectures. The students have also been benefited by the career guidance seminars that have been conducted by the AMP in 2 phases. The next slide. The next, AMP has an on-ground presence of around 140 plus active chapters, which are spread across 26 states and 20 countries, with around 6,000 plus active members. It has its online presence also as members and professionals that are connected on Facebook, WhatsApp, and then Instagram, etc. How can you support AMP? Dear attendees, you can extend your support to AMP in one of the following ways: by becoming volunteers, or becoming partners, or becoming the sponsors or donors as patron members. When you support AMP, you are supporting the community. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. Today is the first session of the 12 lectures planned by the AMP under phase 1 of the career guidance sessions. The phase 1 of the career guidance sessions or seminars includes 12 lectures on 12 different topics from 12 renowned speakers. These lectures will go on till the 14th of June, starting today, the 1st of June. We have Mr. Mohammad Zamir Hussain as the speaker for today's session on the topic, how to choose a right career. Mr. Zamir Hussain is an MBA graduate with certifications in training, career counseling, and quality assessment. He is a versatile international resource person with over 17 years of experience in training and development. He has trained more than 15,000 plus students, 35,000 plus corporate employees from 50 plus different nationalities. Indeed, we are privileged to have you, sir, as our speaker for today's session. A warm welcome to you on behalf of the AMP's SDP core team. Before I hand over the session to the speaker, I request the attendees to post the questions or doubts related to the session in the Q&A box. The speaker will try to clear your doubts at the end of the session. Over to you, Zamir, sir.
Thank you, ma'am. Thank you so much for the introduction of AMP, my introduction, okay, and for setting the tone. So, good evening and assalamu alaikum, everybody. I hope I am quite audible and my screen is also visible. So, thank you, everyone. Without any further delay, let me jump into the subject directly. But I would like to first tell you as to what all I am going to discuss today. Okay, number one, first I would like to start with talking about what is career and what is a job. Okay, so quickly we'll discuss that and then we'll move on to 21st century skills, which is very important. We all must understand because we are going to work in the 21st century. So for working in 21st century, we require 21st century skills. So we'll try and understand that as well. And I would like to give a small perspective on what Industry 4.0 is all about. Okay, so that we understand the job market currently, so that we can also understand the trends in the job market. Okay, but we'll not spend more time here. This is not the main topic. So our main topic, that's our last topic. What we'll be covering is how to find the right career. Okay, I request you to pay attention to my voice also, at the same time to the slides also. There are certain images which I want to share, which makes the concept very much clear. At the same time, there are certain value adds from my side also. So you have to pay attention in both the ways. So you cannot just lend me your ear or eyes. You have to lend me both the things. Okay, I hope English is quite okay with everybody, or in between I'll be using some Hindi words. बीच बीच में हिंदी बोलता रहूंगा, so that everybody can get what I'm talking about. In case any difficulties, जैसा अस्मा मैम ने, खलील भाई ने already बताया, please post your questions in the Q&A section later on. Park your questions in between. If your questions are not answered in between the session, definitely you can ask towards the end. Okay, but please don't post the questions in between. So without any delay, as I told you, my first question, I'm going to start with question: what is a job and what is a career? I want to see some interaction here now. So if you can quickly type in the chat as to what is a job, what is a career. I don't want too long answer, or not a bookish answer, but if you can quickly, can you spell the difference? What is job, what is career? I just want to see whom I am talking to. Yes, anybody, if you can help. What is a job? Career is choosing a particular subject. Okay, Tasmia says that. Nima Nazir says that career is a lifelong plan. Very good. Alikha says the job is what based on which career we choose. Okay. Career brings a lot of jobs. Okay. Manisha, nice answer. Adnan says job is what a person is currently doing and career is direction and field. Okay. Why career cannot be current? Okay, very good. Career is a long-term goal. Job is for money. Okay, very good. I like this. Job is for money. Then what is career for? Huh? Good question to ask ourselves. Job is what you do normally for living and up to for interest. Careers means passion and interest. Okay, career means passion and interest. Okay, career doesn't mean money. Okay, good, good. Wow, I must appreciate. I must commit that. Yes, we have a very lovely crowd today. Thank you everybody for that lively participation. Okay, now I have the smaller answer for this. So let me share that with you. So job is something, a particular job is as somebody said, it is for money, and it's usually short term, and you're getting into a company, you are doing some job, and in return of that you're getting a money. Okay, so that is basically job, but it's a short-term pursuit, often does not require specialized skills, sometimes even without any skills, वहाँ पे जाएंगे, वो जो काम बोलेंगे वो कर देंगे, उसके बदले पैसा मिलेगा. Okay, so job is very generalistic, very short-term, very कोई भी कर सकता है. Okay, I'm not an expert of that. I'm not specially trained on that. Okay, so that is what job is. The second one, जैसा हमने already हम देख रहे हैं screen के ऊपर, या मैंने भी already बताया कि career is what we all should aspire for. Our career kya hai? It's an occupation, it's a profession. You are specialized for that, you are specially trained for that. Okay, so ye somebody's told passion is what career is. Yes, you are partially right, but that passion should get you money also, that should get you the livelihood also. Okay, and jab aap apna passion follow karte hain, to you have a different sense of satisfaction. So that is what career is. Job mein kya hai, hum log majburi hai. Okay, that is what job is, majburi ke liye kar rahe hain. But passion is I choose, it's my choice, I want to be in this. Like hamare SDP team mein, we have so many people who are passionate teachers, who are passionate educators. हम सब लोग यहाँ पे अपना काम भी करते हैं और साथ में AMP के साथ भी जुड़े हुए हैं.
Why? Because it is our passion. हम वहां पे भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं. Why? Because it is our passion. Okay, so this is what the first difference I want each one of us. यहाँ पे जो भी मेरे students available हैं, उनके parents हैं, please इस बात के ऊपर ध्यान दें. आज का एजुकेशन सिस्टम मेजरली आज का एजुकेशन सिस्टम आपको जॉब के लिए रेडी करता है. Most of the schools are doing that. Most of them, I'm not telling all. Most of the schools are preparing you for job but not for career. ओके तो करियर का फर्क जाने, करियर अपना पैशन वो कैसे होता है, अपना पैशन क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें एंड हाउ टू परस्यू दैट पैशन. इस चीज को जानने के लिए ये आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एएमपी के थ्रू. सो लेट्स एम्बार्क ऑन दिस जर्नी. ओके, आई इनवाइट यू ऑल अगेन टू पे अटेंशन एंड let's learn from each other. Okay, there is a survey which says that 65% of the children entering primary school, okay, ultimately end up working in completely new job types. Okay, इसको दूसरे वर्ड्स में बोलता हूँ. Okay, the top 10 in demand jobs in the future. Okay, आगे आपका बच्चा जो आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो एडमिशन ले रहा है, okay, और वो जब अपनी फॉर्मल 14 साल 15 साल या 16 साल की फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करके जब बाहर निकलेगा, उस टाइम पे जो टॉप 10 डिमांडेड जॉब होंगे वो आज मार्केट में अभी नहीं आए हैं. दे आर नॉट देयर स्टिल इन मार्केट. ओके, एज पर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर आज मार्केट में 100 जॉब्स हैं, जब आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंट्री ले रहा है, तो उसमें से 33 जॉब्स जब तक वो फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा 33% जॉब मर जाएंगे और नए 33% जॉब आएंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द पॉइंट हियर इज द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. द जॉब मार्केट इज वेरी डायनामिक, इट इज वॉलेटाइल, इट इज चेंजिंग, इट इज डायनामिक. सो हाउ डू वी प्रिपेयर? हाउ डू वी प्रिपेयर? करियर सेलेक्ट करना एक आइसक्रीम के फ्लेवर सेलेक्ट करने के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है. We should all understand this. आप शॉप पे जाके आप आइसक्रीम का फ्लेवर सेलेक्ट करें, शायद आपको 2 मिनट लगेंगे. कई लोग अपना करियर सेलेक्ट करते हैं 2 मिनट के अंदर. हाँ, मैं इसमें मेरा करियर बना रहा हूँ. प्लीज, आप अपने फ्यूचर में अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं और फ्यूचर से करियर का बहुत बड़ा ताल्लुक है. एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एज टू व्हाट यू आर सेलेक्टिंग योर करियर एज. ओके, एंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल. पेरेंट्स आर फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, फुल टाइम career counselor for their children. Okay, please don't guide, I would use the word misguide, with the knowledge which you acquired 20 years back जब आप जॉब ढूंढ रहे थे. Okay, वो नॉलेज के साथ हम लोग स्टूडेंट्स को आज अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते हैं, because the world is so dynamic, especially the industry is so dynamic. Okay, so for that reason let's understand what industry में बोल रहा हूँ तो इंडस्ट्री क्या हो रहा है भाई, इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है. We have industrial revolution. पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था समवेयर इन लेट 17th सेंचुरी. ओके, तो वहां पे ये हुआ था कि हम उसे इंडस्ट्री 1.0 बोल रहे थे, जहाँ पे मैकेनाइजेशन शुरू हो गया था, कुछ मशीन्स आना शुरू हो गए थे, स्टीम पावर, वीविंग लूम्स. ओके, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ मशीन्स यहाँ वहां पे जो इंसान ऑपरेट कर रहा था, बट वो थोड़ा सा काम आसान कर रहे थे, थोड़ा सा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे थे. तो ये इंडस्ट्री 4.0 का एरा स्टार्ट हुआ लेट 1780s. इट वेंट ऑन टिल 1870s, तकरीबन 100 साल चला ये. ओके, देन इंडस्ट्री 2.0 आया, जहां पे मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सब यूज करने लगे, तो और प्रोडक्शन और तेज हो गया. ओके, स्केल अप हो गया पूरा प्रोडक्शन का लाइन. सो नाउ दिस वाज कॉल्ड एज इंडस्ट्री 2.0. नाउ दिस इंडस्ट्री 2.0 आल्सो लास्टेड अनदर 100 years. ओके, उसे हम लोग बोलेंगे लास्ट वन इज इंडस्ट्री 3.0, जिसमें ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. हमने Y2K बग, आप सब लोगों ने सुना होगा Y2K बग करके. सन 2000 में सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाने वाले. पुराने जो कंप्यूटर्स थे उनको ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो ईयर 1999 बताएंगे, 2000 नहीं बताएंगे. बट देन 2000 के बाद भी कंप्यूटर जिंदा रहे. ओके, दे आर स्टिल वर्किंग एंड दे हैव चेंज द लैंडस्केप, इंडस्ट्री लैंडस्केप लाइक एनीथिंग. आज हम देख रहे हैं कितने सारे जॉब्स हैं जो कंप्यूटर या ऑटोमेशन ने ओवरटेक कर लिया है या बदल दिया है. आज की डेट में हम लोग टाइपराइटर नहीं देख रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. ओके, तो ये इंडस्ट्री 3.0. नाउ दिस इंडस्ट्री 3.0 अपने पिछले दो एंसेस्टर्स इंडस्ट्री 1.0 और इंडस्ट्री 2.0 के मुकाबले जो एक सेंचुरी तक जिंदा थे, मगर इंडस्ट्री 3.0 सिर्फ 70 इयर्स जिंदा रह चुका. ओके, इट कुड सर्वाइव ओनली फॉर 70 इयर्स और 60 इयर्स. उसके बाद आ गया इंडस्ट्री 4.0.
ओके इंडस्ट्री 4.0 जो है इस वक्त जो चल रहा है वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स, आई हैव टू से इट नाउ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी जमाना खत्म हो रहा है. Okay, so now the industry landscape has completely changed, and it is changing as we are talking, as we are discussing new technologies. Within that, further more sub technologies are emerging. So industry landscape is changing like anything. Now we are talking about choosing a career, and why do we need to discuss about industry? Because ultimate aim of education is to prepare our children for the industry. हमको वो जॉब मार्केट के लिए रेडी करना है ना. सो नाउ जॉब मार्केट के लिए रेडी करने में चैलेंज ये हो रहा है कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यूनिवर्सिटी इज गिविंग. यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, वो आपको किस चीज के लिए रेडी कर रही है और इंडस्ट्री इस वक्त क्या डिमांड कर रही है, उसमें बहुत अंतर आ गया, उसमें बहुत गैप आ गया. एंड दैट गैप इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. नाउ द यूनिवर्सिटीज आर लाइक अपने सॉक्स को ऊपर चढ़ा के वो तेज तेज भाग रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू पेस अप विथ व्हाट industry wants now. Okay, and that is why not only universities, not only individual institutions, there are some online learnings also which have become popular, because जो industry में चाहिए वो हमको पढ़ाई में भी चाहिए, वो हमारे बच्चों में वो skills चाहिए. So this industry revolution is changing the job work location like anything. आज से 30 साल पहले की मैं आपको बात सुनाता हूँ. At that time, if we talk about engineering, इन इंजीनियरिंग उस टाइम पे कहा जाता था कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, या कंप्यूटर साइंस जो नया नया उस टाइम पे शुरू हुआ था, तो बोला था कि ये एवरग्रीन फील्ड है, आप इसमें यू गेट इनटू एनी वन ऑफ दिस, इट इज एवरग्रीन, ये कभी नहीं मरेगा. बट टू टेल यू देयर आर मेनी चैलेंजेस व्हिच इज पोज्ड बाय इंडस्ट्री 4.0. आज के डेट में प्लेन सिविल इंजीनियर नहीं चलेगा, वेनिला सिविल इंजीनियर नहीं चलेगा, उसको स्मार्ट सिटी प्लानिंग चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको रोड डेवलपमेंट चाहिए, उसको रनवेज चाहिए. ही हैज टू गेट इनटू सम स्पेशलाइजेशन. हर फील्ड के अंदर एक एक अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आते गए. सो द इंडस्ट्री इज डिमांडिंग सो मच विच द एजुकेशन कैन नॉट प्रोवाइड. सो करियर चूज करने से पहले तो जॉब एंड करियर, दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी डिस्कस. हमको जॉब नहीं देखना है अपने बच्चों के लिए, हमको अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे सुन रहे तो आपको अपने लिए करियर ढूंढना है, आपको करियर तलाश करना है. Okay, don't look out for job. थोड़े दिन में आप थक जाएंगे. You will not be happy in working in the job. But if you have a passion, you will talk with passion. You will do with passion. You will earn with passion. पैसा आपको कमा के नहीं, टाइम आपको पैसा नहीं देगा. Okay, आपका टैलेंट आपको पैसा देगा. Okay, so moving forward, इंडस्ट्री 4.0 के अंदर क्या क्या नए नए टर्म्स आ रहे हैं. There are many such terms. Here are some very few which I can list. ओके, एक अच्छा इमेज दिखा तो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के अंदर. बट देयर आर मेनी विच वी नो. ओके, साइबर सिक्योरिटी ह्यूज डिमांडेड. हर चीज आजकल क्लाउड पे हो रहा है, तो क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी चाहिए. तो साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग सो मच इन डिमांड. आपका व्हाट्सएप का डेटा है, आपका दूसरा डेटा है. आप 3 साल पहले अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे थे तो वहां पे कोई भी एनक्रिप्शन वो ये वाला मैसेज नहीं आ रहा था. अभी आप व्हाट्सएप ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं दिस मैसेज इज एनक्रिप्टेड. ओके, दिस इज पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. क्लाउड कंप्यूटिंग, हर चीज आजकल क्लाउड के ऊपर है. This session we are doing through help of cloud. वरना हम सब लोग पता नहीं देश के इस वक्त किस किस कोने से हम लोग जुड़े हैं, या हो सकता है कोई लोग देश के बाहर से भी जुड़े होंगे. How was it possible that we all connect, we all come in one room under one roof? It would have been impossible. But now with cloud it is possible. Mobile technologies, we are so addicted to mobile now. हम बगैर मोबाइल के नहीं रह सकते हैं. Right? We are so addicted because mobile technology इतना हर walk of life में use हो रही है अभी. Machine to machine communication, 3D printing, advanced robotics, these are all the things which are changing. ये आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, ये आजकल इंडस्ट्री की मांग है. ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कॉलेज की डिग्री इनफ है, नो माय डियर फ्रेंड, नो, ये आपका मिथ है. दिस इज अ मिसकंसेप्शन यू हैव. सो नाउ इफ दिस इज व्हाट इंडस्ट्री वांट्स, अगर हम ये क्लासरूम में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएं? So for that reason, what is demanded is in the classroom, we should teach these 21st century skills. Okay, this is a very popular image. You can find it at many places, but we must understand how our teachers, our educators can imbibe this in their day-to-day teaching. At the same time, the student should develop these skills before they get into the corporate world, because 21st century workplace ये skills demand करता है. अगर यहाँ पे कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यू कैन आस्क योरसेल्फ, आप इसमें से कितने स्किल्स अपने सीवी में लिख चुके हो या लिख सकते हो.
Very, very harsh question I am asking you all. Okay, most of you would not have the answer. This is very challenging, and this is what is currently demanded in the industry. कि critical thinking, creativity, collaboration, ये सब चीज हमारे बच्चों के अंदर चाहिए, या हमारे करिकुलम के अंदर चाहिए, जो करिकुलम बच्चों को दे और बच्चे ये स्किल्स लेके कॉर्पोरेट में एंटर करें. Okay, otherwise they will not find place. Otherwise they will not find place in the industry. Okay, so this is very important that we all understand कि हम लोग पहले अपने आप को इंडस्ट्री के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए तैयार करें, फिर बाद में पता लगाएंगे कौन सा करियर हमको सिलेक्ट करना है. अगर इस वक्त इंडस्ट्री कहाँ जा रही है अगर हमको वो नहीं पता है, सो देन हाउ डू यू एम्बार्क ऑन दिस व्हीकल? आप ये गाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ेंगे जब आपको मालूम नहीं है कि गाड़ी कहाँ जा रही है और किस स्पीड से जा रही है, राइट? सो यू हैव टू पैच अप, आपको मैच करना होगा इसकी स्पीड को. अगर आपको इस गाड़ी में सवार होना है, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस की गाड़ी में अगर आपको सवार होना है, तो आपके पास वो स्किल्स चाहिए होंगे. ओके, सो दैट इज आई लीव द क्वेश्चन विद, बट मोर हियर you can see here top 10 skills of 2025 which is again given by World Economic Forum. Okay, सारी दुनिया की बात हो रही है, सारे विश्व की बात हो रही है. ये सिर्फ महज आप अगर कोई गुलबर्गा कर्नाटका जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, या लखनऊ के पास लाइक यू नो समवेयर, और लाइक यू नो मुंबई के पास समवेयर, कोई छोटे से जगह से आप हैं, या कश्मीर से हैं, या हो सकता है तमिलनाडु में कहीं से हैं. ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे पास ये चीजों की लाइक यू नो इतनी डिमांड नहीं है. But these things are coming and they are here to stay. ये हमारा लाइफ चेंज करने वाले हैं, या चेंज करते आ रहे हैं. Okay, the sooner we realize, the better for us. Okay, so this is one very important aspect which I want to highlight to you all. Now, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? Okay, ये तो हम स्किल्स की बात की अभी. ये स्किल्स के वजह से ये हो रहा है कि there are some skills which are like you know growing, and there are some which are declining. Which are the growing skills? Analytical thinking, active learning, creativity, okay, technology design and programming. Okay, ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूं? Please pay attention for a minute. I am going to share very important statistics with you which says that by 2030 40% of the existing jobs will be taken away by artificial intelligence and machine learning. 2030 तक 40% जॉब जो है वो आपके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुरा लेंगे, वो उनके पास चले जाएंगे जॉब. वो तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? कौन सा जॉब मिलेगा? दे हैव टू गेट इनटू दैट 60%, राइट? बट ये 40% जॉब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कौन करेगा? मशीन लर्निंग कौन करवाएगा? ओके, so now this is a good question we all should know. We should acquire those skills which are demanding, which are future में जिनका डिमांड बढ़ने वाला है. So ये जो आप देख रहे हैं एनालिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लर्निंग एंड ऑल, इसमें कई सारे स्किल्स ऐसे हैं जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने के बाद आप कर सकेंगे, या कई सारे स्किल्स ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ओवरटेक नहीं कर सकता. प्लीज पे अटेंशन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात चीजों को ओवरटेक नहीं कर सकता. किस चीज को? क्रिएटिविटी को. ओके, डिजाइनिंग, कोई डिजाइन करना चाहिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट्स का, तभी जाके रोबोट काम करेगा. किसी को चाहिए कि वो रोबोट की प्रोग्रामिंग करे. ओके, हमको वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए. 2+2 4 करना, कंप्यूटर उससे भी कई आगे की अर्थमेटिक्स कर लेगा. आप वो बेसिक कैलकुलेशन करने वाले होंगे तो आपके लिए जॉब नहीं है. यू हैव टू डू सम एनालिटिकल, यू हैव टू डू सम क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन ओनली यू विल हैव स्पेस इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ओके, अदरवाइज वी विल नॉट. Declining manual work, memory work, verbal work, okay, finance management, reading, writing, management of personnel, ये सारे चीज एक्सटिंग्विश होते जा रहे हैं. ये जॉब्स मर रहे हैं. ओके, ये सब चीज से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट आई वांट टू मेक यू अवेयर कि हम अपने बच्चों का करियर कैसे सिलेक्ट करें. और बच्चे अगर मुझे सुन रहे तो प्लीज डोंट गो विद दैट प्लेन वेनिला फ्लेवर, या पुराने अपने बाप दादाओं के जमाने में जो कोर्सेस या जॉब्स हुआ करते थे. नो, ये आपकी लाइफ नहीं बनाएंगे, ये आपका करियर नहीं बनाएंगे. तो करियर कैसे बनेगा? उससे पहले लास्ट एक चीज डिस्कस करते हैं, देन विल गो टू दैट जॉब्स क्या आ रहे हैं. ओके, जॉब्स क्या आ रहे हैं? सो बिग डेटा आर्किटेक्ट, ह्यूज डिमांड. ओके, इस चीज का डिमांड बढ़ रहा है. ऑटोमेशन टेक्नीशियंस, जैसा मैंने बोला ऑटोमेशन तो हो गया भाई, ऑटोमेशन इज ओवरटेकिंग इंडस्ट्री, बट ऑटोमेशन करेगा कौन? उसको प्रोग्राम कौन करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, ह्यूज डिमांड, बिकॉज सबको पता है ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हमारे खत्म हो जाएंगे आज या कल. तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस जितने भी है उसके इंजीनियर्स चाहिए आगे. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ओके, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट, ये चाहिए ना आजकल.
अभी फ्लिपकार्ट वगैरह लाइक अमेजोन इंडिया में आएंगे तो वो कैसे इंडिया के कल्चर में एडजस्ट करेंगे। हमने देखा है ना, मैकडोनल्ड्स कुछ और बेचना चाह रहा था इंडिया में आके, बट अभी वो इडली इडली वड़ा साउथ इंडियन डिशेस का बैटर बेच रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर emerging टेक्नोलॉजीज या emerging jobs, okay, which are declining. Team assemblers, secretaries, inspectors, testers, sorters, drillers, ये सारे जॉब मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। ओके, सो बी अवेयर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आज आपके बच्चे को अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रेडी करा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर किलिंग हिज फ्यूचर। आप खुद अपने हाथ से अपने बच्चे का फ्यूचर का गला घोंट रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। कैशियर्स आर नो मोर इन डिमांड। ओके, बुक कीपिंग अकाउंट कीपिंग नहीं चाहिए। ओके, देयर इज अ कंट्री एस्टोनिया जहां पे कोई अकाउंटेंट नहीं काम करता है। इनफैक्ट आप अपना बिजनेस करते रहिए, गवर्नमेंट आपको साल के एंड पे भेजती है कि आपका टैक्स कितना हो गया है, कितना टैक्स गवर्नमेंट ने काट लिया है। एस्टोनिया, यू कैन गूगल इट। ओके, ये जॉब मर गए वहां पे, दिस जॉब्स आर नॉट देयर। ओके, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल सिटी, डिजिटल virtual city, virtual country, what we can call. Okay, 13 best jobs in future. Mobile application developer. अभी इतने मोबाइल के एप्स आ रहे तो उनके डेवलपर चाहिए, डेटा आर्किटेक्ट चाहिए। इतना डेटा है गूगल के पास, सारी कंपनियों के पास, और गूगल पे रोजाना ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गीगाबाइट्स ऑफ डेटा लाइक रोज अपलोड हो रहा है, रोज नया डेटा क्रिएट हो रहा है। इसके लिए आर्किटेक्ट चाहिए जो इसको सॉर्ट कर मीनिंगफुल रिपोर्ट्स कंपनीज को दे और कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट्स, अपने प्रोडक्ट्स बना सके। ओके, सो डेटा आर्किटेक्ट्स आर इन डिमांड। डेवऑप्स इंजीनियर, ओके, पूरा एंड टू एंड लाइक प्रोग्रामिंग करेगा। पहले कोडर होते थे, प्रोग्रामर होते थे, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ओके, बट अभी ये सब डेवऑप इंजीनियर एक कर रहा है। कंप्लायंस मैनेजर, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बड़ा बड़ा जॉब हो गया ये आजकल। ओके, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। बिजनेस को आपको आगे एडवाइस करना होगा कि बिजनेस किधर जाए। ओला अगर लॉस में जा रही तो ओला को क्या करना है, अमेजॉन को इंडिया में आना है तो अमेजॉन को इंडिया में क्या करना है, टेस्ला को इंडिया में आना तो इंडिया कैसे आए। Okay, so the business intelligence will help this so these are those jobs which are helping the companies to establish themselves. UX designer, very important. हम लोग करते हैं ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते 24 घंटे के लिए रहता है, मालूम होता है, फिर भी 24 घंटे में 48 बार जाके उसको चेक करते हैं, राइट? कितने लोगों ने अब तक उसको चेक किया है? चेक करने वाला बड़ी मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देखता है, बट हम जाके बार बार चेक करते हैं कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है। नाउ दिस इज अ वर्क ऑफ ए यूएक्स डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। वो आपका एक्सपीरियंस देखकर आपको एंगेज रखना, आपको इन्वॉल्व रखना, आपको बार बार ऐप की तरफ कैसे खींच के लाएं, ये उनका काम होता है यूएक्स डिजाइनर्स का। मार्केटिंग एनालिस्ट एंड many okay, so we have many such people, many such jobs which are emerging into the market. okay, और हम बात कर रहे हैं भैया डॉक्टर बनेगा, भैया इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा? ओके, इंजीनियर में कौन सा इंजीनियर, डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर, ओके, उसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशंस बढ़ गए हैं। ओके, सो व्हाई प्लान योर करियर। अभी हम बात करेंगे करियर क्यों प्लान करना चाहिए। करियर इसलिए प्लान करना चाहिए कि क्योंकि हम हमारी आधी के करीब जिंदगी हम वहां पे बिताएंगे। 8 घंटे आप प्रोफेशनली काम करेंगे ना, 16 घंटे आप पर्सनली ये काम करेंगे 24 में से, तो 8 घंटे अगर आप कर रहे हैं तो 1/3 जिंदगी आप अपने करियर पे बिता रहे हो, करियर में लाइक रहोगे। सो यू हैव टू प्लान दैट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर देयर। सेकंड वन, योर करियर जनरेट्स योर मेजर पार्ट ऑफ लाइफ टाइम अर्निंग्स, या आपका अर्निंग इनफैक्ट वहीं से आ रहा है, करियर से। बहुत कम लोग होते हैं जो पैरेलल करियर, सेकेंडरी करियर, पैसिव सेकेंडरी इनकम बना के रखते हैं। कई लोगों के लिए तो ये टर्म्स नए हैं, दे डोंट नो व्हाट ऑल दिस मीन्स। ओके, तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहेगी तो यही आप योर होल अर्निंग्स आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, if I am making sense, please type in the chat box. If I am making sense, please type yes. Let me hear from you. Is my all slides making sense? Then please type yes. Wow, very good. I have to admit, I have a very lively participants today. Thank you, friends. Thank you. Thanks a lot. Appreciate. Okay, that gives me more energy to continue for rest of my session. Okay, so third one, why plan your career? Your career affects your identity. आपकी करियर से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लोग मुझे जमीर कम ट्रेनर ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो ट्रेनर है ना, क्या नाम उसका, जमीर बोलेंगे, वो जमीर है, वो ट्रेनर है नहीं, ऐसे बोलने वाले कम हो गए हैं आजकल। ज्यादा लोग मुझे कैसे बोलते हैं, वो ट्रेनर है, करियर काउंसलर है, क्या नाम, जमीर। Okay, so that way people recognize me. Okay, your career affects your physical and mental well-being. मेरे साथ भी होता है, मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, जहाँ कोई मिल जाता है उसके लिए करियर काउंसलिंग शुरू कर देता हूँ। कोई मुझे अंडर ग्रेजुएट मिलता है ना काम करने वाला,
मुझसे हजम नहीं होता है. आई ट्राई एंड लाइक स्टार्ट माई काउंसलिंग सेशन देयर. मैं मेरी करियर काउंसलिंग की दुकान खोल देता हूँ. बोलता हूँ व्हाई आर यू लाइक दिस, क्यों करते हो? बिकॉज अभी तो पैसे कमा रहे हो, बट आगे नहीं चलेगी दुकान ये ज्यादा टाइम तक. यू हैव टू गेट इनटू ग्रेजुएशन एंड गेट सम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म अर्निंग प्लान. ओके, दिस इज शॉर्ट टर्म विन, शॉर्ट टर्म विन. तो मैं मेरी करियर काउंसलिंग की दुकान खोल लेता हूँ. सो दिस ऑल विल लाइक डिटरमाइन, ये आपका करियर आपके रहन सहन, आपके बात करने, आपके लाइफस्टाइल, हर चीज के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस. नाउ ये सब बात करने के बाद, हाउ टू फाइंड द राइट करियर, $1 million क्वेश्चन. थोड़ी देर पहले मैंने तो बोल दिया, इट इज नॉट एज गुड एज यू आर सेलेक्टिंग अ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, राइट? सो देन व्हाट इट इज लाइक, कैसे करें? So for that, choosing a career is one of the most hardest thing, but most of we Indians take it very casually. Okay, but thank God I've been doing career counseling professionally for more than 1.5 years now. Okay, and for good number of students whom I have met for career counseling, most of them are from the age group between 9th standard, 10th standard, 11th and 12th. Most of them, I can say 75%, which I'm very happy about. बिकॉज यहाँ पे आपको सही करियर का प्लानिंग करना है, सो दैट आप अच्छी से पढ़ाई करेंगे, उसके हिसाब से आप अच्छा सा जॉब करेंगे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, इफ यू डिसाइड अबाउट योर करियर लेट, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम सम स्टूडेंट कम्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके आए थे मेरे पास. नाउ हाउ डू आई गाइड देम? उनको मैं अगर ये बोलूंगा कि आपने गलत कोर्स किया है, वो तो मुझसे बुरा मान जाएंगे. आई डोंट हैव स्कोप, बट मुझे बोलना पड़ता है उनको. इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ व्हिच आई हैव टू टेल देम. No, this is not matching your psychometry. This is not matching your personality. So that is why start early. One advice here. Okay, let me continue. So choose a career that is something that you really like to do. अगर आपको कुछ काम नहीं होगा तो आप क्या काम करेंगे? अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो आप क्या काम करेंगे? That is what actually you like. That is what actually you like. Second one, do your research and choose your career, choose carefully and thoughtfully. कई बार ऐसा होता है कि वो मूवी का भी डायलॉग है, एंड वॉट एवर इट इज, शर्मा जी का बेटा वो कर रहा है, उनका बेटा ये कर रहा है, पड़ोस वालों का बेटा ये कर रहा है, कजिन में किसी का एग्जाम्पल, लाइक मेनी सच थिंग्स अवर पेरेंट्स वुड यूजुअली डू. If parents are listening to me, please stop doing this. If students are listening, please tell your parents. Okay, go with proper information with them so that they can also take an informed decision. Okay, make it a meaningful choice, and then surviving in the fast economy, which is very important. आप जो नया जॉब अभी आप सिलेक्ट करो, हमने बात किया ना इंडस्ट्री 4.0, थोड़े समय में इंडस्ट्री 5.0 आएगा. इनफैक्ट इंडस्ट्री इज फेसिंग अ चैलेंज. उनको समझ में नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री 5.0 हम कहाँ पे मार्क करें. इतना रैपिड चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है, हर घंटा चेंज हो रहा है. सो हाउ डू दे मार्क वेयर इंडस्ट्री 5.0 स्टार्टिंग? सो इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग इकोनॉमी नाउ. सो इन दैट यू विल ऑलवेज हैव सम कंट्रोल ओवर योर करियर. ऐसा करियर सेलेक्ट करो जहाँ पे आप थोड़ा कंट्रोल हो. अभी के लिए डेटा साइंटिस्ट डिमांडेड है, ठीक है, कूद के डेटा साइंटिस्ट के अंदर 6 महीने 7 महीने का कोर्स कर लिया, 1 लाख 2 लाख देके डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर लिया. बट ये डेटा साइंटिस्ट के ये जॉब के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल है? अगर आप ये डेटा साइंटिस्ट अगर जॉब अगर कल के दिन 2-5 साल बाद मर जाता है, तो सेकेंडरी जॉब आपके पास क्या रहेंगे? यही सेम सर्टिफिकेशन, यही सेम नॉलेज, यही सेम स्किल्स के साथ आप वो जॉब कर पाएंगे. ओके, सो डोंट गेट इनटू सच ए नीश पार्ट जहां पे आप वो आपके हाथ में कंट्रोल में भी नहीं हो, और कल के दिन वो इंडस्ट्री अगर मर जाए तो आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट आज भी चल रहा है, बट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. एक होता था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट करके प्रोफेशन, जहाँ पे अमेरिका में बैठे डॉक्टर अपने आए से पेशेंट के बारे में डिटेल्स बोलेगा ऑनलाइन ऑडियो के ऊपर. यहाँ पे इंडिया में एक बंदा ऑफलाइन उसको रिकॉर्ड को सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको ट्रांसक्राइब करेगा, उसको वर्ड फाइल में डालेगा. वो अगले दिन डॉक्टर के डेस्क पे रहेगी जब पेशेंट दोबारा वहां पे फॉलोअप के लिए आएगा. ये सब क्यों चाहिए? इंश्योरेंस के लिए चाहिए. इंश्योरेंस के लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. सो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वाज अ प्रोफेशन. इट इज स्टिल देयर, इट इज स्टिल लाइव, बट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. बिकॉज आज की डेट में वॉइस रिकॉग्निशन इतना प्रिसिशन, इतना क्लियर हो गया है, कोई भी कुछ भी बोलेगा कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पे तुरंत आ जा रहा है. सो व्हाई डू वी रिक्वायर एन ऑफलाइन पर्सन टू लिसन टू दिस ऑडियो एंड डू दैट? सो इस किस्म के करियर सेलेक्ट करने से पहले हमको 2 बार सोचना होगा. Some people at that time they did not had choice, okay, but for now it cannot be a career. Okay, you must accept risk and plan for the future to advance your career. आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा. कई लोग अपना नेटिव प्लेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, कई लोग घर के करीब वाले कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, राइट? कई लोग ऐसे होते हैं अरे बच्चे को फिर बाद में अमेरिका जाना पड़ेगा, नहीं उसको यहीं रहना है. So there are many such risks which we have to plan, we have to take. Okay, so that also should be considered while planning your career. A college degree does not guarantee employment.
ओके आप लोग सभी ये लाइन को 3 बार पढ़ लें। बहुत सारे टाइम पे हम लोग कॉलेज से इतना एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि भाई ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो बस मेरे बच्चे का मुकद्दर बन जाएगा। इफ दैट इज द केस, सभी बच्चों को वहां पे एक जैसे मार्क्स मिलने चाहिए थे। Then why there is so much of variation in the marks of the students in that college, in that university? So it does matters what college, what university you are studying from, but most of the things are within the child. बच्चे के अंदर होता है कि वो कैसे वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से पढ़ेगा और उसका पैशन क्या है, पैशन मैच होगा तो उधर के लिए काम करेगा। ओके, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ कमिटमेंट टू योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, प्लीज कीप दैट। पहले के जमाने में सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ऐसे होता था कि उनको 2-3 साल में नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ता था क्योंकि उतना नए एडवांसमेंट्स हो रहे थे। नाउ टू टेल यू द फैक्ट, दिस इज हैपनिंग इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हमको कंटिन्यूस लर्नर रहना होगा। अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इस डेट को मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद से मेरी कमाई शुरू हो जाएगी, प्लीज ये डेट नहीं है। आपके पास बार बार ये डेट आनी है जहां पे आप अपनी स्किल्स को रिफ्रेश करेंगे या नए स्किल सीखेंगे, पुराने स्किल्स भूल जाएंगे। देन यू हैव टू कीप अब्रेस्ट, यू हैव टू कीप योरसेल्फ demanded in the industry, then only you'll have the job. For that, continuous learning is the way. Continuous learning is the way. Factors affecting your career choice, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका स्किल्स क्या है, ओके आपका एप्टीट्यूड क्या है, मेंटल एबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके योर पीपल स्किल्स, आप लोगों के साथ कितना अच्छा बात कर सकते हो, कितना जल्दी नया फ्रेंड बना सकते हो, सामने वाले को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, अपनी बात को कैसे उसको तकलीफ देने वाली बात कैसे सुना सकते हो, ओके योर एक्सपीरियंस, योर फैमिली ट्रेडिशंस। बस वो होता है ना, माँ बाप दोनों डॉक्टर तो बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, राइट? बड़ा भाई डॉक्टर बन गया, बहन है तो बच्ची है तो डॉक्टर बनेगी, बच्चा है तो इंजीनियर बनेगा। ओके, सर्टन कस्टम्स हमारे इंडिया में चले आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि लाइक और एक भी मिथ है यहाँ पे विच आई थिंक आई हैव नॉट लिस्टेड, 80% एंड अबव साइंस, 60 to 80 कॉमर्स, लेस देन 60 आर्ट्स। भैया sometime arts people are earning more than what a science students and commerce students can earn. Why are we degrading arts? Okay, every profession has a potential and every individual is unique and they have their own potential. Your potentialities and the profession's potentialities should match, then you will have a flourishing career. Okay, so your personality, your life goals and work values, all these things are important. To choose wisely, work life earnings पहले देख लो। कई बार जैसे मैं एग्जांपल आपको दिया ना, मेरे पास एक डिप्लोमा बंदा है, I know him very well. He is earning for now okay between 20 to 30,000 and he is very happy क्योंकि उसके घर में किसी ने डिप्लोमा नहीं किया था, उसके 1-2 जनरेशन ऊपर में। मैंने बोला भैया why have you stopped at diploma, why don't you think of engineering now? You have a chance of like lateral entry, आप second year से एडमिशन ले सकते हो, get your graduation upgraded, because आप डिप्लोमा होल्डर रहेंगे तो आपका अर्निंग कैपेसिटी 20-30 मैक्सिमम 40 या 50 तक जा सकता होगा। ओके, इट कैन बी मोर आल्सो, बट इन सम केसेस, मेजॉरिटी केसेस इट विल बी हियर। बट इफ यू आर ए डिग्री होल्डर, इफ यू आर ए मास्टर्स होल्डर, आपका सैलरी ब्रैकेट और ऊंचा जाएगा, आपका एवरेज सैलरी ब्रैकेट और ऊपर जाएगा। एजुकेशन लेवल के हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है, एक्सपीरियंस मायने रखता है बट नॉट ऑल द टाइम्स। योर सब्जेक्ट मेजर, आप क्या मेजर पढ़ रहे हो, ओके आपका ऑक्यूपेशन का अर्निंग कितना होता है, एंड पेइंग कैपेसिटी इन दैट क्लस्टर, योर जॉब, ओके आपका एजुकेशन के टाइम पे आपका मनी या आपके पेरेंट्स का बजट कितना है फीस के लिए, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, ओके आप सैलरी कितना टारगेट कर रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे डिप्लोमा कॉलेज के लोग, डिप्लोमा कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, दे वांट टू पे 2 साल डिप्लोमा का फीस 50,000 एग्जांपल, ओके एंड जब इनके पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चे की जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो बोलते हैं सर मेरे बच्चे को 1 लाख माहाना सैलरी का जॉब लग जाएगा, कम से कम 50,000 का तो लग जाएगा सर। मैंने बोला सर ये तो बड़ा बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आपने 2 साल 50,000 देके डिप्लोमा पढ़वाया और आपको 1 महीने में 50,000 आ जाएंगे सैलरी, वाह इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ना। मैं तो 10 बच्चे पैदा करके छोड़ दूं ऐसे पढ़ाकर, डिप्लोमा पढ़ाकर, राइट? इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज नॉट अबाउट दैट, करियर इज पैशन, ओके एंड many students don't want to pursue some of the careers because वहां पे एफर्ट ज्यादा लगते हैं। I see this day in day out, जब करियर काउंसलिंग करता हूँ ना, बोलता हूँ मैं सर डेटा साइंटिस्ट, हाई डिमांड, हाई सैलरी, ओके हायर फीस, बट एट द सेम ऑफ हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। बोलते नहीं, हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन मेरे बच्चे से नहीं होगा, प्लीज सजेस्ट मी सम अदर प्रोफेशन। Okay, so like this, so you have to see all these aspects, then only you should be able to decide. For all this reason, what my strong recommendation to you all is, have a scientific approach. Have a scientific approach.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे साइंस नहीं देखते हैं। लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, गूगल पे जाके रिव्यूज देखेंगे। उतना क्यों, मूवी देखने के लिए भी बाद लोग रिव्यूज देखते हैं। रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने से पहले रिव्यूज देखते हैं, राइट? आप प्रोफेशंस का रिव्यू देखिए हो, कौन से प्रोफेशन में कैसा है, वो भी रॉन्ग जगह से देखते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर्स, और दूसरे कौन से प्रोफेशन का बात कर लो, nowadays no doctor is prescribing even a single medicine without some of the test. Some urine test, blood test, वो test, cat test, MRI test, these test, oh my god, big test, big list of test. क्यों? Because they say नहीं सर, I want to avoid all possibilities of these, मैं आपको exact prescription देना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा, like try to gain your confidence. But why is that required? जब हमको मेडिसिन देने के लिए भी डॉक्टर्स के पास उतने टेस्ट की जरूरत है, तो हम करियर सेलेक्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट क्यों नहीं करवाएं? ओके, ये टेस्ट प्लीज अगेन डोंट टेक टेस्ट एज मनी। हम बच्चे को इससे ज्यादा पैसे का मोबाइल दिलाएंगे, बच्चे को इससे ज्यादा पैसे की साइकिल दिलाएंगे, बच्चे को इससे ज्यादा पैसे की मोटरसाइकिल या कार दिलाएंगे, या उसके पिकनिक या उसके एक्सकर्शन या दूसरी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। सो व्हाई नॉट, जो अपनी जिंदगी जहां बिताने वाला है वो, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिसर्च करके उसको हम सही तरीके से गाइड करें। ओके, आई हैव सीन सम पेरेंट्स कमिंग, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मुझे मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है। Okay, such cases also I have seen in career counseling. So for that reason, my sincere advice to each one of you is, करियर पर्सनैलिटी क्या होता है, अपनी करियर पर्सनैलिटी जाने। आपका करियर इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी इज विद इन। इंटरेस्ट क्या है, काम करने में आपको किस तरीके की जगह पसंद होगी। करियर मोटिवेटर्स, आपको करियर में आगे आगे बढ़ने के लिए क्या हेल्प चाहिए। आपका सीखने का स्टाइल क्या है, अभी यू हैव सम टाइम टू स्टडी, राइट स्टूडेंट्स, तो आपका पढ़ने का तरीका कैसे है, एंड योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। स्किल्स एंड एबिलिटीज कैन चेंज ओवर पीरियड, personality will not change much, but skills and abilities can be developed. Okay, that is why we said start early, so that skills and abilities अगर कम होंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। अगर लास्ट में आ जाएंगे तो बोलेंगे भाई एक साल फिर एक कोर्स करो, ये सर्टिफिकेशन कोर्स करो, देन गेट ऑन टू अ डिफरेंट करियर, लोग नहीं मानते हैं, बोलते हैं मेरे इतने साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, मेरा इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। Okay, but your skills and abilities are not matching the demanded jobs. Okay, so for that reason I have something to share here with you all. Very important, this is my own work which I try to explain most of the people who come to career counseling for me. So one is your career personality, इसका example आपको आने वाले slide में दूंगा। The second one is your career interest. Okay, ये दोनों का overlapping like section अगर हम देखेंगे, okay, that becomes very important for us, that becomes very important for us. Okay, like you can see here this part, यहाँ पे जो है ना ये वाला part, okay, this is a intersection point, right? Intersection point यहाँ पे वो वाला हो गया है। Okay, so now this part is like very important. Okay, so ये वाला चीज आप देखें, so there's intersection of two things, your career personality and career interest, आपका या आपके बच्चे का। उसी तरीके से like now the next one, career motivator, इसमें से कोई चीज और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर देन आएगा लर्निंग स्टाइल, ओके, एंड देन लास्ट आएगा उसका स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये सब मिलाकर एक छोटा सा एरिया बच जाएगा जहाँ पे बच्चा आपका अपने पैशनेट करियर को ढूंढ सकता है। ये चीज हम लोग लाइक वहां पे पहुंचना है, सो इट इज समवेयर हियर। इस चीज को अगर आप पहुंच जाएंगे तो इसके अतराफ जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वही जॉब करें, उसके अतराफ कोई भी थोड़ा सा वेरिएशन वाला जॉब कर सकते हैं, बट नॉट विद टू मच ऑफ वेरिएशन। Too much variation in the personality, too much variation in the interest, too much variation in the skills and abilities, it will not do. Either people will not have work-life balance, then they will rescue to the things like taking bribes, because job enjoy नहीं करते तो रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं। रिश्वत के कई और भी कारण होते हैं, but then we will not justify the profession we are into. Okay, so उसके लिए चाहिए कि आप उसके नियरेस्ट सर्कल, यहाँ तक ग्रीन सर्कल है ठीक है, थोड़ी दूर तक ऑरेंज सर्कल, एम्बर सर्कल जिसे हम बोलेंगे, वहां तक भी आप अपना करियर ढूंढेंगे चलेगा, बट इसके बाहर ना जाए, इसके बाहर ना जाए जहां पे सिर्फ ओनली वन फैक्टर मैच होता है या टू फैक्टर्स मैच होते हैं। वी हैव टू सी दैट मल्टीपल फैक्टर्स शुड मैच व्हाइल सिलेक्टिंग द करियर। मैं करियर्स के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आने वाले 11 दिन में इसके ऊपर बात करेंगे। एएमपी हैज ऑर्गेनाइज अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस का हमने कलेक्शन जमा किया। देयर आर मेनी टू टॉक अबाउट, बट दे आर नॉट मच इन डिमांड। वेरी गुड फिल्टर्ड सिलेक्शन, वेरी गुड स्पीकर्स आप आगे आने वाले 11 दिन में सुनेंगे। मैं कॉमन चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, एंड लेट मी कंटिन्यू, आई थिंक अनदर 5-10 minutes I'll take of yours. Okay, so please choose your profession very carefully. यहाँ पे एक थ्योरी के हिसाब से there is a theory which is called as Myers and Briggs type indicator. उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो दुनिया में जितने भी लोग हैं हम इनको 16 पर्सनालिटीज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं।
हम सब किसी 16 में से किसी एक में फिट होंगे। आप नाम देख सकते हैं वहां पे ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ। ओके, यू नीड नॉट गेट इनटू दिस, आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, ESTJ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, उनके लिए बेस्ट 5 प्रोफेशन है इंश्योरेंस सेल्स एजेंट, फार्मासिस्ट, लॉयर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जज। ISTJ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वेब डेवलपमेंट इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये करियर पर्सनालिटी के हिसाब से सर्टन प्रोफेशंस लिस्ट हो जाते हैं। माय प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट सर्कल। ओके, नाउ द सेकंड सर्कल, like we have another theory called as John Holland's Riasek model. ओके, तो यहाँ पे बंदे का काम करने के तरीके में हम लोग टॉप 3 चीजें क्या होते हैं वो देखते हैं। रियलिस्टिक बंदा, उसको प्रैक्टिकल वर्क चाहिए, टेबल कुर्सी वाला जॉब नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेटिव बंदा, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, उसको वो जॉब चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व हो, कुछ नया करना हो। ओके, आर्टिस्टिक बंदा वो होता है जिसको आर्ट, पेन या लाइक यू नो इवन ग्राफिक्स या कंप्यूटर के थ्रू करने वाला या लैंग्वेज रिलेटेड आर्टिस्टिक, वो वहां पे वो लोग, उनको वो इंक्लिनेशन ज्यादा होता है। सोशल लोग लोगों से मिलना चाहते हैं, एंटरप्राइजिंग लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, कन्वेंशनल लोग वेरी ऑर्गेनाइज होते हैं। तो नाउ दिस इज सेकंड सेट ऑफ, अगर बच्चे का जो टॉप 3 ये आएगा, इसके हिसाब से सेकंड सेट ऑफ प्रोफेशंस आ जाएंगे। सो नाउ व्हाट विल डू इज इंटरसेक्शन, पर्सनालिटी टाइप, पर्सनालिटी इंटरेस्ट, ये दोनों के हिसाब से क्या मैचिंग प्रोफेशंस आते हैं। इसी तरीके से हम पूरे पांचों प्रोफेशंस, पांचों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए 2-3, आप एक को भी कंसीडर करके भी प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग अ स्टैंडर्ड अप्रोच जहाँ पे 5 को सेलेक्ट करके किया जाता है। तो उसके बाद होता क्या है, आपके पास एक 20 प्रोफेशंस की लिस्ट आ जाएगी, जो आपका बच्चा या अगर बच्चे सुन रहे तो आप ये कर सकते हो। आप उसमें से क्या करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, उसके बाद में उसको डीसेलेक्ट करेंगे, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, रीजंस यहाँ पे देख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई सब अच्छा है, नर्स सब अच्छा है। इंजीनियरिंग के लिए क्या हो रहा है, अगर आप एबिलिटी वाला कॉलम यहाँ पे देखेंगे, लो इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, हाई इन लीडरशिप, इस बंदे को अगर हम इंजीनियरिंग में डाल देंगे, जहाँ पे उसको प्रैक्टिकल रियलिस्टिक वर्क ज्यादा करना है, उसको फील्ड पे ज्यादा रहना है, लोगों से कम मिलना है, लोगों से मिलता होता है, इंटरेक्शन चाहिए, बट लाइक यू नो दैट न्यूमेरिकल एबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड एबिलिटी ऑफ दिस प्रोफेशन, इसके लिए हम बोलेंगे अवॉइड। So there could be some top choice, there could be some good choice, there could be some develop, there could be some explore, there could be some avoid. ओके, तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, 20 की शॉर्ट लिस्ट में से आप निकाल के 2-4 को फेंक देंगे, 4-6 को फेंक देंगे, देन एक 5 को आप रख के आगे अपनी एजुकेशन लाइन में बढ़ते जाएंगे। देन व्हेन यू आर नियर टू योर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के हिसाब से 5 सेलेक्ट करना है। ओके, एंड देन बिफोर योर फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, देन प्रोफेशनल पीजी करना है या नहीं, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना है या नहीं, दैट यू विल गेट टू नो विद द शॉर्टलिस्टेड 2-3 शॉर्टलिस्टेड प्रोफेशंस। इस तरीके से हमको फिल्टर करके जाना होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट लाइक सेलेक्टिंग अ पिज्जा का फ्लेवर या आइसक्रीम का फ्लेवर सेलेक्ट किए जैसा नहीं है। देयर आर इनफ एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, देन यू विल बी हैप्पी, you will be serving the community, you will be happy working, you will be happy working with your, like you know, be coming back to home, spending good quality time with your family, work life balance create होगा, and most above you will make proud your parents, and above all country के अंदर एक like you know खुशहाली रहेगी। आज की डेट में let me share the facts with you, every year there are 12 lakh new entrants into the job market, जिसमें से 3 लाख अकेले इंजीनियर्स होते हैं। 3 लाख इंजीनियर्स के अंदर more than 80% engineers, especially the computer science engineers, they cannot write one program without a single bug, single error, without seeing anything. Okay, engineer हो गए, okay, engineer हो गए computer science के, but they cannot write one single program or one program without a single bug. Okay, that is why it is very important that we understand all these aspects. Computer science की बात करूं तो और एक बात बोलता हूं, within computer science we have 2 professions which I'm talking about. One is a coder or programmer, one is a like you know developer. Developer का क्या होता है कि वो पूरा लाइफ साइकिल सोचता है कि यूजर का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कौन से स्क्रीन, कौन से रिपोर्ट्स आएंगे, कौन से स्क्रीन पे क्या डेटा कलेक्शन होना चाहिए। दिस इज व्हाट लाइक यू नो डेवलपर विल डू। कोडर क्या करता है, ये स्क्रीन पे ये फील्ड चाहिए, ये डेटा कलेक्ट होना है, ये वैलिडेशन चाहिए, वो उतना ही प्रोग्रामिंग करता है, उतना ही प्रोग्रामिंग करता है। So within software only there are 2 different professions which I am giving example of. Project manager, फिर अभी दूसरी बात करूंगा तो और होगा। So what I am trying to tell is within computer science only there are different professions. Okay, and इसके लिए different personality, different skill set लगेगा। तो हमको देखना है कि आपका स्किल्स कहाँ मैच होता है या आपके बच्चे का स्किल कहाँ मैच होता है। So for all these things have a plan. Very important. कंपेयर ईच करियर विथ व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कितना जानते हो, और जो 20 जो शॉर्टलिस्ट किए ना उससे बोल रहा हूँ
3000 प्रोफेशन है, उससे कंपेयर मत करो. सो कंपेयर विद दोस 20 शॉर्ट लिस्टेड. आपका इंटरेस्ट कहाँ पे मैच होता है, व्हाट मेजर सब्जेक्ट्स यू नीड टू स्टडी फॉर दिस, व्हाट यू वुड एंजॉय डूइंग एट योर वर्क प्लेस. ओके, मुझे किसी ने ट्रेनर का, जब मुझे आई डिड अ करियर काउंसलिंग, ओके, जब 10th में था, तो मुझे ट्रेनर का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा था. भाई ट्रैवल करना पड़ेगा, लाइक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, जगह जगह जाना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा. दिस अट्रैक्टेड मी अ लॉट, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये. ओके, so then like this we will also have to see that does this career match your personality, needs, wants, abilities, family ke responsibilities, other things, like there are so many things also which we have to see. Okay, and also more things, what are the risks you have to take. Okay, no risk no gains. Okay, and how to start your plan now, that's a big question. So for that, as I told you, make your decision. आप पहले decision ले लें कि आप career counseling में support चाहिए आपको. Okay, set your goal, where do you want to see yourself, what kind of career you want to pursue, and then implement your plan. If required, re-evaluate your plan in between. Okay, and refocus, and then आगे बढ़ते जाएं. अगर जहाँ जहाँ भी changes लगता है, as I told you, 20 से 10, then 5, and then get into that 1, 2, 3 professions which are most passionate about. Okay, be knowledgeable about your career options. जैसा मैं बोल रहा था पेरेंट्स को थोड़ी देर पहले, don't advise your child with the 20 years old knowledge which you gained 20 years back. Okay, आज का जॉब मार्केट इंडस्ट्री 4.0 का है, 21st century स्किल्स चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर. ओके, विद दैट वी कैन नॉट. ओके, इंडिया में तो वो ट्रेंड चला हुआ है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए. पेरेंट्स को, हमारे हर बच्चा मेडिकल भी पढ़ ले तो उसको बोलते हैं तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा ना, राइट. सो दैट्स द इंक्लिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब वी ऑल हैव. सो एक्सप्लोर द ऑक्यूपेशनल लिस्ट. आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन जस्ट गूगल इट. Okay, so research several careers, don't just be on one. Research का मतलब उसका सिर्फ नाम जानना नहीं है, इसके अंदर प्रोफेशन कैसा चल रहा है, ये कौन से इंडस्ट्री में इसका काम हो सकता है, यहाँ पे एक दिन कैसा बिताया जाता है, क्या यूजुअली स्किल सेट इसके अंदर लगते हैं, कैसे कैसे इसके अंदर लाइक बिजनेस या जॉब के स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब के क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं. सो यू हैव टू हैव अ थरो रिसर्च ऑन एवरी शॉर्टलिस्टेड प्रोफेशन, every shortlisted occupation. Okay, then browse the career sections of newspaper में जाके देखो आज की डेट में क्या डिमांडेड चल रहा है. भाई किसी ने आपको बोल दिया ये इंजीनियरिंग के 4 एवरग्रीन स्ट्रीम्स है, इसमें से किसी में भी कर दो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ये ज्योतिषी के ऊपर भरोसा ना करें. गो टू द न्यूज़पेपर एंड सी विच आर द न्यू जॉब्स इन द मार्केट, या जॉब पोर्टल पे भी जाके देखें आप, आपको नजर आएगा नए नए जॉब्स के नाम आएंगे. UI UX डिजाइनर, डेटा साइंटिस्ट, okay, falana dinka, and there are so many huge list which I can talk about. Okay, so go and research that, then your interest will start gathering there. See a career counselor, which is a very important thing. Okay, network, LinkedIn like platform तो रहेगा, but आपको LinkedIn से पहले भी नेटवर्क करना होगा. अगर आपके कजिन्स, आपके पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस में, तो उनसे बात करो, उनको अपने जॉब के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत मजा आता है. they will definitely tell a lot about their job, their profession. उनसे एक बार पूछ लो, अंकल भैया आप क्या करते हो, बस, and then wait, देखते जाओ वो कैसे बात करेंगे. So listen to them. आपको अपना इंटरेस्ट मैच होता है या नहीं वहां पे पता चलेगा. Okay, assess your skills, very important. There are various places where you can go and assess your skills. या career counseling में जाएंगे तो वहां पे भी ये हो जाएगा कोई psychometric test के अंदर. But do find out what your strengths are, what your weaknesses are. इसके बगैर जॉब सेलेक्ट करना, मार्केट में सिर्फ सैलरी के लिए जॉब सेलेक्ट करना इज नॉट गुड. सैलरी डिमांड देखना है, फ्यूचर डिमांड ऑफ द जॉब देखना है, बट ओनली सैलरी के आधार पे आप बच्चे का करियर मत बनाइए, या बच्चे अपना करियर प्लीज ऐसे मत बनाइए. ओके, हमको चाहिए कि वी हैव टू मैच द डिमांड एंड सप्लाई. जैसा मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, आज की डेट में इतने इंजीनियर्स घर पे खाली बैठे हैं, दे आर नॉट गेटिंग जॉब. वन इज इट डजंट मैच देयर पैशन. अगर उनका पैशन मैच करता होगा तो दे विल क्रैक द इंटरव्यू. इट इज नॉट मैचिंग देयर पैशन, नंबर 1. नंबर 2, इतने सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे तो डिमांड भी तो चाहिए ना इंडस्ट्री में. अभी इंडस्ट्री को पता चल गया इतने लोग इंजीनियर बनते हैं, हाँ 1 लाख के जॉब में यार 30-30 हजार में ले लो, इतने इंजीनियर बैठे हैं बाहर हॉल में, राइट. एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सैलरी लेटर ऑन. व्हाई? डिमांड एंड सप्लाई. देयर आर मेनी अदर जॉब्स जहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. सो आपके बच्चे को वो जॉब में जाना चाहिए. Okay, so that is more important. Academic strengths, personal qualities. Sorry, academic strength. One more thing, please don't rely on the academic marks cards. Marks cards are good, yes, relevant, required, interview के लिए चाहिए. But let me tell you, in my psychometric test, जो mathematical skills and ability का section होता है, कई सारे बच्चे वहाँ पे कमजोर हो जाते हैं. They can't score. उनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा 90-95 स्कोर करता है मैथ्स में, और आप बोलते हो कि इसका मैथ्स वीक है.
मैं बोलता हूँ ठीक है, 2 प्रॉब्लम मैं अभी डाल के देता हूँ, देखते हैं आपका बच्चा सॉल्व करता है क्या. ओके, दे विल नॉट बी एबल टू. व्हाई, आई टेल यू, बिकॉज वहां पे मेथोडोरिकल मेथड फॉलो करते हुए जब बच्चे सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, वो मेथड में आ जाता है. समथिंग न्यू समटाइम्स सम चिल्ड्रन कांट डू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ओके, नॉट ऑल बट some can't do. So that is, if they can do here also, that is their actual ability. Otherwise it is not their actual ability. Okay, personal qualities and then people skills. ये सब आप देखिए आपका skill strength कहाँ पे है, and then you proceed in selecting your career. So see a career counselor. The career counselors will help you not only for college but also to select the profession, career. ये सभी के लिए help करते हैं. अगर आपको कोई career counselor specific एक career के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि भैया आप वो कॉलेज में जाओ, I don't call him career counselor, I call him admission counselor. आज की डेट में कई सारे ऐसे एडमिशन काउंसलर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने से, किसी कॉलेज में एडमिशन कराने से कुछ पैसा मिल जाता है, एंड दे फोर्स यू टू गेट इनटू दैट करियर. अगर आपको कोई करियर काउंसलर ऐसे अगर करता है तो प्लीज, आई कंसिडर देम एज नो करियर काउंसलर, दे आर एडमिशन काउंसलर्स, दे आर मिसगाइडिंग यू. ओके, सो डिस्कवर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आप खुद भी अपने से जाने, इवैल्यूएट योर वैल्यूज एंड गोल्स, एंड देन सॉर्ट थ्रू व्हाट टाइप ऑफ करियर यू वांट टू गेट इनटू, and then career counselor will help you to identify which are the 1, 2, 3 good choice. Okay, 1, 2, 3 good choice. Choice is all yours. Choice is all yours. Okay, but do seek help of somebody who can really guide you. Okay, last thing which I want to share with you all before I wind up my talk is आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है. उसको बाज लोगों ने उसको टर्म किया है कि the future is VUCA. How is future? Future is VUCA. What is VUCA here? VUCA, V stands for volatile. आगे का फ्यूचर बहुत volatile है. We don't know आगे का इंडस्ट्री लैंडस्केप, एजुकेशन लैंडस्केप, ये चीजें कैसे चेंज हो रही है. इट्स वेरी volatile, very dynamic, day in day out changes. 1. Number 2, uncertain. कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई प्रेडिक्शन. बहुत सारे प्रेडिक्शंस फेल हो रहे हैं, तकरीबन प्रेडिक्शंस फेल होते जा रहे हैं डे बाय डे. देयर आर वेरी फ्यू व्हिच आर गोइंग फर्दर. एंड थर्ड वन, फ्यूचर बहुत कॉम्प्लेक्स है. आजकल लोग अलग अलग तरीके से कमा रहे हैं, इंटरमीडिएरीज इधर उधर बीच में कमा रहे हैं, कोई कुछ करके कमा रहा है. वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेसेस आर गेटिंग क्रिएटेड एंड एम्बिगुअस. ओके, कोई क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, कोई क्लैरिटी नहीं है. इट्स वेरी लाइक इतना एम्बिगुअस हो गया कि कोई क्लियरिटी है ही नहीं उसके अंदर. नाउ हाउ टू डील विद फ्यूचर? It is not only about individual, it is not about school, it is not about college, it is not about district or state, it is about country, it is about the world. हमको चाहिए कि हम लोग फ्यूचर के लिए तैयार हो जाए. Then only we can have a strong nation. So for that, there is a VUCA for VUCA. There is a VUCA for VUCA. For volatility, we need vision. देश का छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का छोड़ दीजिए, आप अपना सोचिए, अपने लिए अपने फ्यूचर का विजन बनाइए. Parents, help your child to have a proper vision for his or her future. Second one, have the understanding कि आगे की दुनिया कैसी लगने वाली है. Have a clarity, get to know different things, क्या क्या हो रहे हैं. We cannot deny the technological changes which are coming across. And for all these things, we have to be agile, be ready and receptive to change. If this all we can do, we can have a very flourishing career. Okay. So with this, I want to end with a quote saying that there is no good or bad career. There is either passionate career or miserable career. आप क्या select करते हो, आप वो बनते हो. So please select wisely. Please select wisely. With this, I end my talk on selecting the career. To summarize, I can tell, please understand what is the difference between job and a career. Focus on career. Okay. Second one, industry कहाँ changes, क्या changes हो रहे हैं और कौन सी चीजें कहाँ जा रही हैं. Please be aware of that. Today we have a robot which is doing a bypass surgery. Okay. So आपका बच्चा डॉक्टर पढ़ लेगा तो ठीक है, but at the same time he must be accustomed or at least aware of how does a robot works, how a robot can be programmed. Okay, what technology. आगे आने वाला एरा जो है amalgamation of technologies का है, amalgamation of different disruptive technologies का है. EdTech, education and technology, FinTech, finance and technology, biotech, biology and technology. Okay, इसीलिए STEM learning demanded में आ रही है. So to summarize again, job and career, क्या इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं और इंडस्ट्री के चेंजेस के हिसाब से क्या नए स्किल्स आएंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए भी आपको एक प्लान बनाते हुए चलना है और वो प्लान के ऊपर फर्म रहना है. And that should be very matching with the psychology and the passion of the child, so that he will have a very fulfilling and satisfying career. He will be an asset to the community, he will be an asset to the nation. Okay, with this I end my talk, and before that I would request Aisha to help me to take up some questions if there are any.
Samir sir, I'm here. There are few Yeah, ma'am. questions in the Q&A box here. So what about medical in future? कर एक कर सादिक अली इम्तियाज अली पूछे हैं. So what about medical in future? मेडिकल जब तक इंसान है, जब तक बीमारी है, जब तक बीमारी है, जब तक डॉक्टर है. ओके, सो डॉक्टर प्रोफेशन मरने वाला नहीं है. बट द चैलेंज इज, अगर आपके पास, मैं डॉक्टरी प्रोफेशन के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि इट हैज नॉट बिकम अ शॉर्ट टर्म कोर्स नाउ. मेडिकल प्रोफेशन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म profession wherein you have to have a MBBS degree first, number 2 then you have to go for a PG something specialization, and then उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अपना करियर बनाने के लिए. नाउ इसमें मैं एक एथिक्स का थोड़ा सा डिमांड करना चाहूंगा. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. कि मेडिकल पढ़ने के लिए, लेट्स से I, whatever to my best knowledge as a career counselor, I can say is some people are spending on an average around 2 CR, 2 करोड़ तक मेडिकल की 5.5 साल की पढ़ाई के लिए स्पेंड कर रहे हैं. ओके, विद अ गुड स्कोरिंग, गुड कॉलेज, गुड मार्क्स, गुड रैंकिंग इन द नीट और व्हाटएवर द स्टेट एंट्रेंस टेस्ट इट इज. देन पीजी करने के लिए वो फिर और 2 से 5 करोड़ लगाते हैं. ओके, नाउ ये सब करने के बाद में चैलेंज ये हो जाता है कि उनको पेरेंट्स से या अपने आप से भी एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि हमको ये पैसा जल्दी ROI देखना है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है. So many doctors, what they are doing now is they are becoming a very commercial thing. And वो ये है कि भाई इतने साल में इतना पैसा कमाया है तो उतने जल्दी भी पैसे को वापस रिटर्न लाना है. So ethics part ये बोलता है कि आप पैसा आप डाल के इतना पढ़ रहे हो तो बट डू सर्व द कम्युनिटी. आपको पैसा वापस किया इंटेंशन से नहीं पढ़ना है, आपको कम्युनिटी को सर्व करने के इंटेंशन से पढ़ना है. सो मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो गई है. And if you can afford and still serve the community, पैसा कमाओ उसके बाद, I'm not denying on that side, but do have certain element of serving the community and working for a cause. But otherwise, it's a very good profession. It's always in demand. You have to carve a niche for yourself कि आप कौन से specific segment में जाएंगे. अगर आप dentist की बात करेंगे तो उसमें भी कई सारे specialization आ गए. अगर आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो उसमें भी कितने के फर्दर स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं. ओके, सो यू हैव टू गो एंड अपना एक स्पेशल सेगमेंट क्रिएट करना होगा आपको अपने लिए. उसके लिए काफी टाइम और काफी पैसा लगेगा. प्लेन MBBS डॉक्टर सिवाय अटेंडर के दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है आजकल मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में. सॉरी टू से दिस, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबॉडीज इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स, बट आई एम शेयरिंग द फैक्ट विथ यू. तो आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा टाइम लगेगा इसमें अपना करियर फ्लोरिश करने के लिए. अदरवाइज इट्स अ एवरग्रीन प्रोफेशन. Okay, I hope I have answered. Asma ma'am, another question. How to start a business born in a middle class family, and what business to start which has higher success rate in future? Somehow don't see it in the purview. Okay, but एक चीज लिंक करता हूँ. पहली चीज, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सिंपल पहला सजेशन, गो एंड गूगल के फ्री हॉलैंड इन्वेंट्री टेस्ट या हॉलैंड रियासेक मॉडल टेस्ट करके देख लेना. वहां पे जाके आप एक फ्री टेस्ट दे लेना. अगर एंटरप्राइजिंग आपके 1, 2 या 3 रेटिंग में आ गया, सो देन ओनली जंप इनटू बिजनेस. अगर एंटरप्राइजिंग आपके इसमें नहीं आता है, फर्स्ट 3 में नहीं आता है, 4th, 5th या 6th में आता है, प्लीज डोंट जंप इनटू बिजनेस. ओके, एक करियर काउंसलर होने के नाते मैं पहला अपना फर्ज निभा लेता हूँ. सेकेंड पार्ट, अगर आपको बिजनेस करना ही है, सी बिजनेस इज नेवर अबाउट कौन सी एक चीज का बिजनेस करूं. देयर आर सो मेनी बिजनेस व्हिच आर रनिंग. ओके, मेरा माय आइडिया ऑफ डूइंग अ बिजनेस, आई टेल यू, आई एम अ career counselor, I am a trainer, I am a HR consultant, I am a award assessor, I am a teacher, I am a policy setter, I am a consultant for new institute, I am a consultant for deemed to be university. Okay, मैं multiple roles कर रहा हूँ, but ये सारे roles मेरे कहीं ना कहीं कुछ commonality है इसके अंदर. Okay, what commonality? I like to deal with people. Okay, and my knowledge, my experience, all those things will help me to get there. तो मेरे पास जब मैं I was 8 years in Dubai. Let me tell you that I was 8 years in Dubai. When I came back from Dubai, the first option which was there in front of me to do a business of medical equipments. Super business, I'm telling you. Okay, आप भी मत करना unless until it is really matching with you. Okay, मैंने इसमें इसलिए jump नहीं किया because it was not my cup of tea. I search out for business which is in line with my existing knowledge, skills, my talent. ये सभी से मैच करता हुआ मैंने अलग अलग सब स्ट्रीम्स ढूंढते गया और मैं उसमें अपना करियर ढूंढा. एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई वर्क प्राउडली. आई सेव 14 hours a day.
मैं 14 घंटे तो कम से कम हर दिन काम करता हूँ और मेरा कोई टाइम नहीं है काम करने का। किसी दिन रात में बैठता हूँ 12 बजे लैपटॉप लेके, सुबह 4 बजे ताजुद पढ़ के सो जाता हूँ, फजर पढ़ के सो जाता हूँ। किसी दिन मॉर्निंग जल्दी उठता हूँ, सो आई डोंट हैव दैट टाइम टेबल। नाउ अनदर एग्जांपल आई गिव यू, व्हाइल आई वाज वर्किंग विद HDFC बैंक इन इंडिया, आई वाज अ ट्रेनर, and while my training was so effective that one of the quality department's team, they outperformed मेरी ट्रेनिंग के बाद। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट मैनेजर केम टू मी एंड सेड, व्हाई डोंट यू जंप इनटू क्वालिटी, तुम इतना ट्रेनिंग करने के बाद में इतना डिफरेंस आया, तो यू आर ए गुड पर्सन इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट, सो व्हाई डोंट यू जंप इनटू क्वालिटी डिपार्टमेंट। आई वाज सो हैप्पी, सैलरी बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा, ट्रैवलिंग बंद हो जाएगा, दिस दैट एंड ऑल। बट देन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर में गया, रात में अपने बिस्तर पे लेटा, तो मुझे आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, विल आई एंजॉय दैट? मैं यहाँ पे लोगों से नहीं मिलूंगा ज्यादा, मैं ट्रैवल नहीं करूंगा, ओके, सो दिस थिंग वाज नॉट मेकिंग मी हैप्पी, so I said no, I'm not going to join. The quality manager was surprised, how could I reject his offer? I rejected this offer because मेरा पैशन यहाँ पे था। आप बिजनेस भी उसी का करिए, पहले तो आपको बिजनेस आपका पैशन होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड आप वो प्रोडक्ट भी वो लें जो आपको पैशन से मैच होता हो, then only you can do it, otherwise you will not do. There are many business, हर बिजनेस में हिट लोग मिलेंगे, हर बिजनेस में फ्लॉप लोग मिलेंगे आपको, ओके। सो देयर इज वन, एक ऐसा बिजनेस नहीं है मैं आपको सजेस्ट कर दूं, बोल दूं भाई जाओ भाई ये करो, आई एम नॉट दैट राजेश झुनझुनवाला के भाई जाओ इसमें शेयर मार्केट में ये वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, ओके, आई एम नॉट ऑफ दैट काइंड। सो प्लीज डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड देन डिसाइड, ओके। थैंक यू सो मच। अस्मा मैम, अनदर क्वेश्चन। Safwan is asking, could you share the slides? Also, could you suggest a free personality and academic assessment test? या सी, आज की डेट में शेख गूगल, ओके, आपको कुछ भी करना हो आप गूगल शेख के पास चले जाइए, दैट शेख विल आंसर यू सो मेनी क्वेश्चंस। आज की डेट में देयर आर मेनी सच साइट्स व्हिच आर अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज, आप वहाँ पे भी पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हो। ये स्लाइड्स हम लोग डायरेक्टली शायद शेयर नहीं कर पाए, बट इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे इसको अपलोड किया जाएगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सो फॉर कमिंग बैक टू द फ्री टेस्ट, बहुत सारे फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू रेकमेंड टेस्ट इज बिकॉज द चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश, दिस टेस्ट आर ऑल गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप जैसा टेस्ट में इनपुट देंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो टेस्ट बराबर नहीं दे पाते हैं और उनका रिजल्ट कुछ और आ जाता है। सो दैट इज व्हाई यू गो एंड डू 2-3 साइट पे जाके MBTI का टेस्ट देना, MBTI मेयर्स एंड ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, अपना पर्सनैलिटी जान लो। करियर इंटरेस्ट जानना है, करियर इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जॉन हॉलैंड्स रियासेक मॉडल का टेस्ट ढूंढ लो, उसका टेस्ट दे लो, फ्री हो जाएगा भाई, पैसे देने की जरूरत नहीं। पैसे देने की ख्वाहिश हो तो मेरा नंबर लेके कॉल कर लेना आयशा को, मोर देन हैप्पी टू डू अ कमर्शियल करियर कॉम्प्रिहेंसिव करियर काउंसलिंग फॉर यू, but many resources are available free, you can do that also, okay. So that's a very good option. I don't recommend free so immediately, unless until you have some confusion, you have some, and in your own place you can find it. Please find somebody physical जिनके पास आप face to face जाके कर सकते हो, okay, that would really help. Online may help but not so much, okay, but many resources available online. I hope we have answered it. Yes ma'am, Asma ma'am. Sir, is YouTube a good career? YouTuber. Hey, YouTube, हाँ, YouTuber is okay, good question. If you tell me YouTube is not, okay, see, YouTuber के लिए भी again number one, रियासेक मॉडल में आपका आर्टिस्टिक हाई आना चाहिए, because either with your बात करने का आर्ट या आपका वीडियो एडिटिंग वाला आर्ट, like there are so many things which you can do, but all these things ना, अभी थोड़ी देर पहले बिजनेस में भी किसी के बिजनेस के बारे में भी किसी ने सवाल किया था। See, I'll tell you one thing here, business is not about what we can offer. Business is all about what problem we are solving for the larger community, okay. जैसे कि खाने का बिजनेस है, इंसान दिन में 3 बार खाता है, ये बिजनेस कभी नहीं मरेगा। कपड़े का बिजनेस है, इंसान हर साल कम से कम 4 जोड़ तो नए खरीदेगा ही खरीदेगा कपड़े, ये बिजनेस भी ज्यादा नहीं मरेगा, ओके। गाड़ी, इंसान 3 से 5 साल में गाड़ी खरीद लेता है, ये बिजनेस भी नहीं मरेगा। मोबाइल, इंसान 2 से 3 साल में नया मोबाइल खरीद लेता है, ये बिजनेस भी नहीं मरेगा। सो यू सी व्हाट इज दैट नीड विच यू कैन फुलफिल। मेरा नीड ये है कि मैं लोगों का कंफ्यूजन दूर करता हूँ प्रोफेशन सेलेक्ट करने में, लोगों के स्किल्स डेवलप करता हूँ उनको कॉर्पोरेट रेडी बनाने में, HR के पॉलिसी सेट करता हूँ ताकि HR का डिपार्टमेंट अच्छे से फंक्शन करे, कंपनी प्रोडक्टिव हो। सो आई एम सॉल्विंग सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। आई हैव अ बिजनेस, so you decide a business where you can solve a certain problem. तो पहले आप ये देखें कि अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के हिसाब से आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके हिसाब से बिजनेस सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से यूट्यूबर में जाइए। यूट्यूबर क्या करता है,
उनको वो अट्रैक्टिव वीडियोस चाहिए कि वो यूट्यूबर बनने के बाद में कैसा लोग अट्रैक्टेड रहे। कई लोगों ने मुझे पूछा, सर एज ए टेड टॉक करते हैं क्या सर आप, आपके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है? मैंने बोला नहीं, आई डोंट कीप इट बिकॉज आई वर्क इन कॉर्पोरेट, आई डू ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू द कॉम्पिटेंसीज विच आर रिक्वायर्ड। मैं इमोशनल टॉक नहीं करता हूँ, मोटिवेशनल टॉक करता हूँ। इमोशनल टॉक वो होता है कि आपको ऐसे बात करके रुला देंगे, आप डोर के बाहर जाते उस पर सब भूल जाएंगे। आई एम अ मोटिवेशनल एंड कॉम्पिटेंसी ट्रेनर, जो मैं कॉम्पिटेंसीज डेवलप करता हूँ लोगों का, जिससे वो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े और वो पैसे कमाए। सो दैट इज व्हाट आई सर्व। So you look out for what you can serve. Okay, that's my honest opinion to you. The next question, can you please share some website which help us for personality test? As I told you again, Google it and एक दो टेस्ट में अंदर जाके भी देखिए, इंग्लिश आपको मैच होता है तो दीजिए। ओके, personality16.com, MBTI का खुद का अपना है। ओके, there is another thing called as DISC profiling, DISC, उससे भी कुछ चीजें क्लियर होते हैं। ये सारे फ्री अवेलेबल हैं। मैं खुद भी इसको याद नहीं रखता हूँ बिकॉज मेरा अपना है एंड आई डोंट वांट टू मार्केट दैट हियर। ओके, बट आप यहाँ पे जाएं और गूगल करें। ओके, जस्ट गूगल इट एंड 2-4 स्टेप्स अंदर जाके देखें कि वन, इट शुड रिमेन फ्री टिल द टाइम यू गेट द रिपोर्ट इन योर ईमेल, एंड सेकंड वन इज आपको इंग्लिश समझ में आती है उनकी। देयर आर सम वेस्टर्न वेबसाइट जिनकी इंग्लिश आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। आई डोंट नो व्हाट योर इंग्लिश लेवल इज। ओके, बट उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। लाइक इफ आई टेल यू MBTI, they can be 1-pager test, they could be 100 questions test, there is a test which spans for 1 hour. Okay, तो अलग अलग स्पैन भी होता है, उसके हिसाब से वो टेस्ट की रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है घटती है। बट जितना क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी वहां पे पैसा भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो आई नो मोस्ट ऑफ देम पेड, मैं खुद यूज करता हूँ। ओके, वी हैव मेनी सच थिंग पेड आल्सो, you just google it please. I don't want to name any. Okay, yes Asma ma'am, any other question? Yeah, the last question of the day, sir. So what about engineering? Which stream to go, keeping in mind the demands of the future? Again, we are betraying the whole purpose. Okay, अगर आपकी साइकोमेट्री जाने बगैर मैं आपको कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में सजेस्ट करूंगा, मैं उसको अपने आप के लिए गुनाह समझूंगा। ओके, आई वोंट लाइक टू सजेस्ट टिल आई नो द साइकोमेट्री ऑफ द पर्सन। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भाई इंजीनियरिंग आपके लिए सही प्रोफेशन है या नहीं, राइट? दैट इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन। इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा स्ट्रीम आप मुझे पूछ रहे हो, तो मैं पूछूंगा इंजीनियरिंग आपने कैसे डिसाइड किया। ओके, सो फॉर दैट रीजन इंजीनियरिंग इज डिमांडेड। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे फर्दर स्पेशलाइजेशंस आजकल आ गए हैं। ओके, सो यू लुक आउट फॉर द स्किल्स व्हिच आर मैचिंग यू, अदरवाइज फिर ऐसे ही मैं जनरल बोलूंगा तो वी आर बीटिंग द पर्पस। मैं ये बोलूंगा कि भाई आप एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करो। ओके, आप यू कैन गूगल इट, मैंने भी स्किल्स में डाला ना, कंप्यूटर साइंस तो मोस्ट डिमांडेड है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, AR VR, ये सारे चीज तो आगे बढ़ने वाले हम लोग बात कर रहे हैं। बट साथ में मैंने ये भी बताया आपको कि देयर आर आर्टिस्टिक थिंग्स, देयर आर क्रिटिकल एनालिसिस, या देयर आर सम वेरियस अदर थिंग्स व्हिच computer cannot automate, या artificial intelligence or robots cannot overtake. Okay, so there are still many such jobs also, but again I don't want to suggest। आप लोग अभी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी भी जो हमारे नेक्स्ट 11 दिन में आपको जो भी सेशंस होंगे ना, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, देखिए कौन सा आपके इंटरेस्ट से मैच होता है, उसके बारे में फर्दर रिसर्च करके फिर डिसाइड कीजिए। ओके, डोंट जस्ट जंप, पहले 2 सेमिनार सुनकर आप डोंट जंप टू आई विल गो फॉर दिस प्रोफेशन। ओके, प्लीज, इट विल not serve the purpose what AMP is taking all these efforts to help you to understand and choose the right career. It is about choosing, it is not किसी ने बोल दिया और आपने ले लिया। जैसे नामकरण कर रहे हैं ना, किसी शेख के पास चले गए, शेख ये बच्चे का नाम रखिए, कुछ उन्होंने बोल दिया भाई मोहम्मद जमीर रख दो। ओके, तो सोच समझ के करिए आप, एंड ऐसे नाम रखे ऐसा नहीं होगा ये। यू हैव टू हैव अ साइकोमेट्रिक मैचिंग देयर। ओके, थैंक यू। So I think we have covered all the questions. So Jazakallahu khairan Zamir sir for this very informative and explicit session. I'm sure this session has benefited all the attendees. I thank you on behalf of the AMP core team members and also on behalf of all the attendees. Thank you so much. Before signing off today's session, I would like to inform the attendees that tomorrow we have a session on career in life sciences and medicine. Career in life sciences and medicine at the same time, that is 5 p.m. Please do join with your friends and your parents and get benefited from these sessions. So with this, we have come to the end of the session. Thank you and hope to see you again tomorrow attending the further sessions. Thank you so much. Thank you everybody. Jazakumullah khair.